Okay, so today we're starting with one of the most important concepts in open economy, and this concept is of capital mobility. Now, before you think कि capital mobility क्या होता है, let's start with one of the lines that Don Bush starts by saying, and Don Bush says that today's world has a very high degree of integration. Don Bush mentions that there is a very high degree of integration. And where is this integration? This integration can be found in the financial markets. So, very high degree of integration and high degree of integration in the financial markets. Now, what is the meaning of integration? Integration क्या होता है? So, this means कि अगर markets में we trade assets such as what are the assets that we trade in financial markets? Bonds हो सकता है, we have stocks, ठीक है. तो जब ऐसे एसेट्स मार्केट में जब ट्रेड होते हैं, और कहाँ के मार्केट्स में ट्रेड हो सकते हैं, यूके, यूएस, लेट्स से जर्मनी, इन मार्केट्स में ये एसेट्स ट्रेड होते हैं, ये एसेट्स यहाँ पे ट्रेड होते हैं, राइट. तो जब ये ट्रेड होते हैं तो डॉन बुश के कहने का मतलब दैट देयर इज़ अ वेरी हाई डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब ये सारे जो मार्केट्स हैं, मार्केट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है, डिफरेंट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल प्लेसेस इन द वर्ल्ड, यहाँ पे ये सारे मार्केट्स इंटीग्रेटेड एंड इंटरकनेक्टेड हैं आपस में. सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर सिटिंग इन इंडिया और लेट्स यू आर सिटिंग इन यूएस, ठीक है, या इफ़ यू आर सिटिंग इन यूरोप, एंड यू आर नॉट लिमिटेड टू इन्वेस्टिंग इन आइदर इंडिया या यूएस या यूरोप. मैं अगर इंडिया में हूँ तो इट्स नॉट, I'm not bounded by investing only in India. I can also invest in some other other places, right? So you can invest anywhere, and this is the meaning of high degree of integration. That physical foundations की वजह से ऐसा नहीं है that money won't be able to travel to some other place. So high degree of integration means this, ठीक है. तो let us take an example and मान लो कि I have let's say 1 लाख रुपये with me, ठीक है, मेरे पास इतने पैसे हैं, 1 लाख रुपए है मेरे पास. एंड मैंने देखा कि इंडिया में इंटरेस्ट रेट क्या है, तो इंडिया में जब मैंने इंटरेस्ट रेट चेक किया तो इंडिया में 6% है इंटरेस्ट रेट, लेट्स से. एंड इन यूएस द इंटरेस्ट रेटेड रेट इज लेट्स से 8%. सो my question is, where are you going to invest? Are you going to invest in India or are you going to invest in US? So of course obviously you will want a higher return and you will try to invest in US, ठीक है. So when millions of people think like this, जब सबको यूएस में इन्वेस्ट करना है because यूएस offers a higher rate of interest, this is what capital mobility is, ठीक है. This is what capital mobility is when you check interest rate of two countries, let's say for example, and you find that US offers you a higher rate of interest, so all the money will move to US, ठीक है, because everybody would want to invest in US. So this is capital mobility. Mobility word comes from the word mobile. Mobile means that able to travel, ठीक है, able to move. This is what mobility means, right? And capital हमें पता है, capital is related to money, right? So लेट्स से कि इंडिया में ना, एक और एग्जांपल लेते हैं, इंडिया में लेट्स से कि 1 ईयर का जो इंटरेस्ट रेट है, 1 ईयर इंटरेस्ट रेट लेट्स से वो 5% है, ठीक है, 5% है इंडिया में. एंड यूएस में, यूएसए में जो सेम 1 ईयर इंटरेस्ट रेट है दैट इज लेट्स से 8%, ठीक है. नाउ आई हैड 1 लाख रुपये विथ मी, मेरे पास 1 लाख रुपए थे, है ना. तो इफ़ मैं इंडिया में इन्वेस्ट करती हूँ तो 1 साल के बाद मुझे कितना पैसा मिलेगा, 1 साल के बाद मुझे मिलेगा 5% इंटरेस्ट रेट मिलेगा ऑन द 1 लाख रुपी दैट आई एम इन्वेस्टिंग. So I'll be getting 1 lakh 5,000 rupees, right, in India if I invest. And if I convert ये पूरा जो मेरे पास एक 1 लाख रुपये है, if I convert it into dollar and then I try and invest it in US, ठीक है, पहले मैंने इसको डॉलर में कन्वर्ट किया and then I try and invest it in US because US में 8% इंटरेस्ट रेट है, then I would approximately be getting rupees 1,08,000, है ना. इफ़ अभी मैं एक्सचेंज रेट इग्नोर करके सिर्फ अगर सिंपल लेमन टर्म्स में बोलूँ, एक्सचेंज रेट अभी इग्नोर कर दें, तो मुझे यूएस में मेरे 1 लाख रुपए 1 साल के बाद हो जाएंगे 1,08,000 रुपये, राइट. सो क्लियरली आई विल शिफ्ट माई मनी टू द यूएस बिकॉज यूएस में 1 साल के बाद आई विल बी गेटिंग हायर रिटर्न, राइट. सो अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स विल मूव मनी टू द यूएस क्योंकि यूएस इज ऑफरिंग मी अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट. अब एक बात बताओ, जब यूएस में इतने पैसे मूव करेंगे तो क्या सप्लाई ऑफ फंड्स will increase there in US. US में supply of funds will increase because everybody is moving their money to the US, right? तो जब supply of funds, जब supply बहुत ज़्यादा हो जाती है मनी की, तो इंटरेस्ट रेट पे हम क्या इफेक्ट देखते हैं, इंटरेस्ट रेट फॉल हो जाता है क्योंकि सप्लाई ऑफ फंड्स बहुत ज़्यादा है, तो इंटरेस्ट रेट यूएस में जो है वो कम हो जाएगा. नाउ मनी इज लीविंग इंडिया, है ना, मनी लीव्स इंडिया बिकॉज
एवरीबडी विल बी इन्वेस्टिंग इन यूएसए, राइट? तो मनी लीव्स इंडिया। अब जब इंडिया में शॉर्टेज हो गए फंड्स के, है ना, सप्लाई ऑफ फंड्स को क्या हुआ इंडिया में, क्योंकि इंडिया से पैसा निकल गया है, तो सप्लाई ऑफ फंड्स को क्या हुआ, सप्लाई ऑफ फंड्स इंडिया में डिक्रीज हो गए। जब सप्लाई ऑफ फंड्स डिक्रीज हो जाएगा, जब मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाता है, तो इंटरेस्ट रेट को क्या होता है, इंटरेस्ट रेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है। तो इनिशियली कंडीशन ये थी कि यूएसए में इंटरेस्ट रेट 8% था, इसीलिए एवरीबडी वाज मूविंग देयर मनी टू यूएसए, बट इवेंचुअली वी सी कि इंटरेस्ट रेट यूएसए में कम हो गया, और इंटरेस्ट रेट इंडिया में पहले कम था विच वॉज 5%, इसीलिए सब इंडिया से पैसा निकाल रहे थे, एंड इवेंचुअली इंटरेस्ट रेट इंडिया में इंक्रीज हो गया, राइट, ड्यू टू दिस इंटायर प्रोसेस। तो हम क्या देख सकते हैं, इवेंचुअली बोथ इंटरेस्ट रेट स्टार्ट बिकमिंग सिमिलर, राइट, दिस वन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग एंड इंडिया का इंटरेस्ट रेट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। सो यहाँ से ही जो आइडिया आता है ऑफ कैपिटल मोबिलिटी, वो ये है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कैपिटल फ्लोज जो होते हैं, मनी फ्लोज, हाँ, कैपिटल फ्लोज, दे इक्वलाइज, कैपिटल फ्लोज इक्वलाइज रिटर्न्स अक्रॉस कंट्रीज। ठीक है, अलग अलग कंट्री में जो मेरे रिटर्न्स है ना, कैपिटल फ्लोज की वजह से, कैपिटल मूवमेंट की वजह से रिटर्न्स जो होते हैं दे गेट इक्वलाइज्ड, वो इक्वल हो जाते हैं। अब कैसे इक्वल हुए, क्योंकि यूएस में पहले 8% था इंटरेस्ट रेट, और क्योंकि सप्लाई ऑफ फंड्स यूएस में इंक्रीज हुआ और इंटरेस्ट रेट कम होने लगा, तो लेट्स से इंटरेस्ट रेट कम होके हो गया 6%, है ना, यूएस में इंटरेस्ट रेट कम होके 8% से 6% हो गया, और इंडिया में पहले 5% था, और इंडिया में क्योंकि इवेंचुअली इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो हो सकता है 5% से बढ़ के ये भी 6% हो जाए। तो कैपिटल फ्लोज की वजह से क्या हुआ कि इंटरेस्ट रेट अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज दीज दे बिकम सिमिलर, right? So this is the entire idea about capital flows. Now we'll move to another assumption that Don Bush says that we have to consider a perfect world। ठीक है, ये perfect world का हमारे पास एक assumption आता है। अब perfect world क्या होता है, ठीक है, perfect world मतलब पहला point that exchange rates never change, right? I'll write everything down. So exchange rates never change, ये होता है पहला assumption of a perfect world, exchange rate कभी change नहीं होगा, ठीक है। second assumption is that taxes are same everywhere। second assumption है कि दोनों countries में and पूरे world में इनफैक्ट टैक्सेस सेम होंगे, टैक्स डिफरेंसेस नहीं होंगे, ठीक है, देर आर नो टैक्स डिफरेंसेस। एंड थर्ड assumption है कि कोई रिस्क नहीं होगा, देर इज नो रिस्क। रिस्क किस सेंस में, रिस्क एज इन डिफॉल्ट नहीं होगा कभी, है ना, गवर्नमेंट कभी इंटरफेयर नहीं करेगी, नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी, ठीक है। तो ये जो रिस्क के कंपोनेंट्स होते हैं ये भी नहीं है, तो कोई रिस्क भी नहीं होगा इन दिस वर्ल्ड। सो अब ऐसे वर्ल्ड में जहाँ एक्सचेंज रेट कभी चेंज नहीं होता, टैक्सेस सेम है और कोई रिस्क भी नहीं है, ऐसे वर्ल्ड में क्या होता है, हर इंसान वहाँ पे इन्वेस्ट करता है जो जहाँ पे उसको हाई रिटर्न मिलता है। हम वहाँ इन्वेस्ट करेंगे जहाँ हमें हाई रिटर्न मिलेगा, गिवन कि मेरे परफेक्ट वर्ल्ड में ये सारे सिनेरियोज मैच हो रहे हैं, उसके बाद हम ये डिसीजन लेते हैं दैट वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट एट द इन द कंट्री जहाँ पे हमें हाईएस्ट रिटर्न एसेट मिलेगा। और इसकी वजह से क्या होता है, हमने अभी देख लिया कि इंटरेस्ट रेट जो है वो अक्रॉस ऑल कंट्रीज इट विल बिकम एग्जैक्टली इक्वल, इंटरेस्ट रेट इक्वल हो जाता है, राइट। सो नो कंट्री इज एट, क्या कह सकते हैं, किसी भी कंट्री के पास एडवांटेज नहीं, नो कंट्री इज एट एडवांटेज बिकॉज इंटरेस्ट रेट इज इवेंचुअली गोइंग टू बी सेम, ठीक है। तो रियल वर्ल्ड और परफेक्ट वर्ल्ड में डिफरेंस होता है ना, तो परफेक्ट वर्ल्ड के जैसा रियल वर्ल्ड नहीं होता है ना। रियल वर्ल्ड में, अब परफेक्ट वर्ल्ड में जो हमने एग्जांपल्स देखे कि एक्सचेंज रेट कभी चेंज नहीं होगा, टैक्सेस सेम होंगे, रिस्क नहीं होगा, क्या रियल वर्ल्ड में भी ये चीज़ें होंगी, नहीं होंगी। तो रियल वर्ल्ड में हमारे पास क्या प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम फर्स्ट प्रॉब्लम इज ऑफ एक्सचेंज रेट रिस्क, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ऑफ एक्सचेंज रेट रिस्क। नाउ व्हाट इज दिस, तो फॉर एग्जाम्पल हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखा था दैट मैंने 1 लाख रुपए जो हैं, आई इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज़ इन यूएस, और वो मेरे लिए बन गए थे 1 साल के बाद 1,08,000, राइट। और वही अब इस सिनेरियो में मेरे पास, ये हमने देखा था कि एक्सचेंज रेट को मैं कंसिडरेशन में नहीं ले रही थी, बट इफ़ आई टेक एक्सचेंज रेट इनटू कंसिडरेशन, तो मेरे पास क्या होगा, मान लो डॉलर वीक हो जाता है, मेरे पैसे तो यूएस में है ना, और डॉलर वहाँ पे वीक हो गया। अगर डॉलर वीक हो गया है इसका मतलब रुपी अप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है, डॉलर वीक हो गया है, तो ये जो 1,08,000 रुपये मैंने देखे थे ये तो विदाउट एक्सचेंज रेट कंसिडरेशन था, बट अगर डॉलर वीक होगा देन इन रुपी के टर्म्स में मुझे हो सकता है सिर्फ 1,04,000 रुपये ही मिले,
ठीक है, तो क्योंकि मेरा डॉलर वीक हुआ है, एक्चुअल में मुझे क्या मिल रहा है, 1,04,000 रुपीज़ ही मिल रहा है, ठीक है। दिस मीन्स दैट डॉलर जो है वो वीक हो गया है। तो सडनली मैंने क्या नोटिस किया कि मेरा रिटर्न लोअर है देन इंडिया, बिकॉज इंडिया में आई वॉज गेटिंग 1,05,000, राइट। बट यूएस में आई इन्वेस्टेड इन, व्हाट डिड आई गेट इन रिटर्न, आई गॉट इन रिटर्न 1,04,000, जबकि इंडिया में मुझे 1,05,000 मिल रहा था। सो एक्सचेंज रेट चेंजेस विल अफेक्ट माई रिटर्न्स, रिटर्न्स मेरे अफेक्ट होते हैं ड्यू टू द चेंजेस इन एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो हमेशा एक्सचेंज रेट चेंजेस का रिस्क रहता है। सेकंड सेकंड मेरे पास है टैक्स डिफरेंसेस। अब टैक्स डिफरेंसेस कैसे होते हैं और वो कैसे इम्पैक्ट करते हैं डिसीजंस को ऑफ इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट कंट्रीज। सो टैक्स डिफरेंसेस, नाउ डिफरेंट कंट्रीज tax the investments differently. So फॉर एग्जाम्पल मैंने इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट की है और मैंने यूएस में भी इन्वेस्टमेंट की है, तो दोनों कंट्रीज मुझे अलग तरीके से टैक्स करेंगी ऑन माई इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो इवन इफ इंटरेस्ट रेट इज लेट्स से 8% इन यूएसए, बट आफ्टर टैक्स ऐसा हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट का जो मुझे रिटर्न इवेंचुअली मिल रहा है वो 6% मिल रहा है, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू चेंज माई डिफरेंट डिसीजन अलॉट कि मुझे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, डिपेंडिंग ऑन कि टैक्स डिफरेंसेस वहाँ पे कैसे हैं अलग अलग कंट्रीज में। एंड थर्ड इज, विच डज नॉट रिक्वायर मच एक्सप्लेनेशन, दिस इज माई पॉलिटिकल या डिफॉल्ट रिस्क, ठीक है। पॉलिटिकल या डिफॉल्ट रिस्क, सो पॉलिटिकल या डिफॉल्ट रिस्क मीन्स कि अगर मैंने किसी कंट्री में मनी इन्वेस्ट किया, हो सकता है वहाँ पे रीपे मतलब वो लोग लोन रीपे ना कर पाए, आई इन्वेस्टेड एंड रीपे नहीं कर पाए मुझे लोन वो लोग, ठीक है। या कुछ भी इशू हो सकता है, मनी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है किसी भी सेंस में, अगर मनी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है तो इन सब चीज़ों के वजह से एक रिस्क होता है ऑफ पॉलिटिकल या डिफॉल्ट करने का रिस्क। तो इन्वेस्टर्स इन दिस केस ऑल्सो कंसिडर कि कोई पॉलिटिकल या डिफॉल्ट रिस्क तो नहीं है। तो तीन मेरे पास इश्यूज हैं, पहला है एक्सचेंज रेट रिस्क हो सकता है, सेकंड है मेरे पास टैक्स डिफरेंसेस हो सकते हैं, एंड थर्ड इसकी पॉलिटिकल या डिफॉल्ट रिस्क भी हो सकता है, राइट। ओके, तो रियल वर्ल्ड में हमें समझ में आ गया कि रियल वर्ल्ड में तो यार इंटरेस्ट रेट्स आर नॉट एग्जैक्टली इक्वल अक्रॉस कंट्रीज, ठीक है। क्योंकि नहीं हो सकते, क्योंकि हमने ये जो आइडियल वर्ल्ड लिया था यहाँ पे कैपिटल फ्लोज की वजह से इक्वलाइज हो गया था मेरा इंटरेस्ट रेट, है ना। बट अगर रियल में देखें तो हमारे पास ये तीन इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं जो हमने यहाँ पे कंसिडर किए, तो इन तीन इश्यूज की वजह से इंटरेस्ट रेट्स आर नॉट एग्जैक्टली इक्वल अक्रॉस कंट्रीज, बट दे आर स्टिल वेरी क्लोज, और एटलीस्ट इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू कंसिडर दैट इंटरेस्ट रेट्स जो हैं दैट आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, वेरी क्लोज टू ईच अदर। बट इन रियलिटी वी ऑल नो दैट ये सिनेरियो नहीं होता, ठीक है। ओके, सो अब आ जाते हैं परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी क्या होती है। अभी तक हमने देखा कि कैपिटल मोबिलिटी क्या होती है, अब ये समझते हैं कि यार परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी, ये जो वर्ड ऐड हो गया यहाँ पे मेरे पास परफेक्ट, परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी का क्या मतलब है, राइट। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी मीन्स की, ये समझो ध्यान से। फर्स्ट थिंग दैट आई कैन इन्वेस्ट इन एनी कंट्री, ठीक है। परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी मीन्स आई कैन इन्वेस्ट इन एनी कंट्री, इन एनी कंट्री, ठीक है। दिस इज व्हाट परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी का फर्स्ट पॉइंट ब्रिंग्स मी टू। एंड आई कैन इन्वेस्ट इन एनी कंट्री, आई कैन डू दैट इंस्टेंटली, मेरे को तुरंत आई कैन इन्वेस्ट माई मनी, आई डोंट हैव टू deal with a lot of hassles, I can do this instantly, ठीक है। this is a very instant process. Third, that I can do it at a very low cost. थर्ड क्या है, that I can do it at a very low cost. एंड फोर्थ, दैट आई कैन डू दिस इन अनलिमिटेड अमाउंट, मुझे सिर्फ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ओके आप इतने ही पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, नो। फर्स्ट थिंग इज दैट आई कैन, फर्स्ट थिंग क्या है, दैट आई कैन इन्वेस्ट इन एनी कंट्री, ठीक है, इन एनी कंट्री। सेकेंड है मेरे पास दैट आई कैन डू दिस इंस्टेंटली, टाइम लैग नहीं होगा। थर्ड है दैट आई कैन डू इट एट अ वेरी लो कॉस्ट, एंड फोर्थ है दैट आई कैन इन्वेस्ट अनलिमिटेड अमाउंट्स ऑफ मनी, ठीक है। बिकॉज मनी हैज़ नो बैरियर्स, मनी हैज़ no barriers. So this is what perfect capital mobility means, ठीक है। perfect capital mobility or PCM means कि I can invest in any country, I can do that instantly, I can do at a very low cost, and I can invest unlimited amounts of money, ठीक है। तो if let's say कि यूएस में जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% है, एंड लेट्स से कनाडा ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, कनाडा में इंटरेस्ट रेट 6% है, तो इन्वेस्टर्स अपना पैसा कनाडा से निकाल के कहाँ पे डालेंगे, यूएस में, ठीक है। और जितने भी बोरोवर्स होंगे वो यूएस से कहाँ आ जाएंगे, कनाडा शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा कि
now you know na why borrowers will come from US to Canada, because Canada में 6% interest rate है, and a borrower is going to consider कि interest rate कहाँ पे कम हो, because they will have to then repay less money, right? So इससे क्या होगा, जब सारे लोग इन्वेस्टर सारा पैसा कनाडा से मूव करके यूएस में डाल रहे हैं, सारे इन्वेस्टर्स कनाडा से पैसा मूव करके यूएस में डाल रहे हैं, तो इससे रिजल्ट क्या होने वाला है यूएस के इंटरेस्ट रेट पे, दैट यूएस का इंटरेस्ट रेट इज गोइंग टू फॉल, राइट? एंड वाइस वर्सा कनाडा का इंटरेस्ट रेट के साथ क्या होने वाला है, कनाडा का इंटरेस्ट रेट इज गोइंग टू इंक्रीज, एंड इवेंचुअली ये कंडीशन पहुंच जाएगी मेरे इक्विलिब्रियम पे, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग टू बी इक्वल टू ईच अदर, राइट? अब बैलेंस ऑफ पेमेंट से ये कैसे लिंक्ड है, ठीक है? तो अगर यूएस का इंटरेस्ट रेट फॉल हो रहा है, लेट्स से पहले 10% था, अब 10% से लेट्स से 5% पे आ गया, ठीक है? और फॉरेन इंटरेस्ट रेट मतलब किसी और कंट्री का, लेट्स से वो 6% था पहले, और वो 6% से इंक्रीज होकर लेट्स से 8% पे पहुंच गया। तो ये यूएस का एग्जाम्पल है और ये कनाडा का एग्जाम्पल है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट से ये कैसे लिंक्ड है? तो यूएस इन्वेस्टर्स ने क्या किया, क्योंकि उनके यहाँ पे कम हो गया इंटरेस्ट रेट, तो यूएस इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा बाहर भेज दिया, ठीक है? तो यूएस से मनी फ्लोज आउट, है ना, क्योंकि यूएस में इंटरेस्ट रेट फॉल हो गया, तो यूएस से मनी फ्लोज आउट। अब जब मनी फ्लोज आउट फ्रॉम एनी कंट्री, इसको हम क्या बोलते हैं? व्हेन मनी फ्लोज आउट फ्रॉम एनी कंट्री, इसको हम बोलते हैं कैपिटल आउटफ्लो। दिस इज कॉल्ड एज कैपिटल आउटफ्लो, राइट? एंड दिस लीड्स टू, जब कैपिटल आउटफ्लो होता है तो मेरा बीओपी जो होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, दैट वी हैव स्टडीड ऑलरेडी, बीओपी वर्सन्स इन दिस केस, ठीक है? जब भी मनी मूव्स आउट ऑफ द कंट्री, बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो बहुत वर्सन हो जाता है, क्योंकि मनी इज लीविंग द कंट्री, ठीक है? तो कैपिटल आउटफ्लो ऑलवेज लीड्स टू वर्सनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, ठीक है? तो इंटरेस्ट, तो अभी अब तक हमने क्या समझा कि पहला, दैट इंटरेस्ट रेट से क्या अफेक्ट होता है, कैपिटल फ्लो अफेक्ट होता है ना? इंटरेस्ट रेट से सबसे पहले क्या अफेक्ट होता है, कैपिटल फ्लोज इफेक्ट होता है, और कैपिटल फ्लो से मैंने क्या देखा अफेक्ट होते हुए, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो अगर कैपिटल इनफ्लो होगा मेरी कंट्री में, जैसे कैपिटल आउटफ्लो देखा हमने, वैसे ही देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कैपिटल इनफ्लो, जब पैसा मेरी कंट्री में आएगा ड्यू टू द डिफरेंस इन इंटरेस्ट रेट्स, ड्यू टू इंटरेस्ट रेट डिफरेंसेस, ठीक है? इंटरेस्ट रेट के डिफरेंस की वजह से मनी विल कम इनटू माय कंट्री, कैपिटल इनफ्लो होगा, तो बीओपी मेरा इम्प्रूव होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट विल इम्प्रूव। और जब मैंने देखा कैपिटल आउटफ्लो होगा, देन बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट इज गोइंग टू वर्सन, ठीक है? सो दिस इज व्हाट दिस इंटायर यू नो टॉपिक ऑफ कैपिटल परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी टॉट अस, राइट? ओके, तो अब हम यहाँ से स्लोली स्लोली अपना मॉडल बिल्ड करने वाले हैं, ठीक है? और मॉडल जब हम बिल्ड करेंगे तो हम उसमें ना असम्पशंस लेने वाले हैं। राइट नाउ वी आर सेटिंग अप द मॉडल। व्हाट आर वी डूइंग? वी आर सेटिंग अप द मॉडल, ठीक है? और जब हम ये मॉडल सेटअप कर रहे हैं, तो हमारा सबसे फर्स्ट जो असम्पशन आता है, हम तीन चीज़ें अज्यूम करेंगे, ठीक है? जो हमारा सबसे फर्स्ट असम्पशन आता है वो ये है दैट इम्पोर्ट प्राइसेस आर फिक्स्ड। ये मेरा फर्स्ट अजम्पशन है कि जो मेरे इम्पोर्ट प्राइजेज हैं ये फिक्स्ड होते हैं, ठीक है? इम्पोर्ट प्राइजेज आर फिक्स्ड। आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, डोंट वरी। सेकेंड है एक्सपोर्ट डिमांड, एंड प्लीज राइट इट डाउन ना मेरे साथ, तो यू विल बी एबल टू रिवाइज इट बिफोर योर एग्जाम। सो फर्स्ट अजम्पशन इज दैट इम्पोर्ट प्राइसेज आर फिक्स्ड। सेकेंड इज दैट एक्सपोर्ट डिमांड इज गिवन टू अस, हमें पता है एक्सपोर्ट के लिए कितनी डिमांड है, ठीक है? एंड थर्ड अजम्पशन इज कि जो वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट है, वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट विल डिनोट इट फ्रॉम आई एफ, फॉरेन, ठीक है? एफ मतलब फॉरेन, तो जो वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट है वो भी फिक्स्ड है। वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड है, वो फ्लक्चुएटिंग नहीं है। ये हम अपने मॉडल को सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये अजम्पशंस ले रहे हैं। पहला अजम्पशन, इम्पोर्ट प्राइसेस फिक्स्ड है, ठीक है? इम्पोर्ट प्राइसेस फिक्स्ड है मतलब अगर मैं इंडिया में हूँ और मुझे इम्पोर्ट करना है तो उसका प्राइस फिक्स्ड है, द प्राइस इज नॉट गोइंग टू फ्लक्चुएट, ठीक है? सेकंड, एक्सपोर्ट डिमांड भी मुझे बताई हुई है कि इतना ही आपके सामान, मतलब मेरे किसी गुड का, लेट्स से इंडिया में एक कार प्रोड्यूस होती है, तो उस कार का वो एक्सपोर्ट करते हैं हम इंडिया से, तो उस कार का जो डिमांड है ये भी मुझे पता है, ठीक है? सो एक्सपोर्ट डिमांड इज ऑल्सो गिवन टू अस। एंड थर्ड की वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट जो है आई एफ, फॉरेन इंटरेस्ट रेट, वो फिक्स्ड होगा, दैट इज नॉट गोइंग टू फ्लक्चुएट। सो वी आर ओनली गोइंग टू फोकस अपॉन कि हमारे डोमेस्टिक कंट्री में इंटरेस्ट रेट क्या है। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री वेरी इंपॉर्टेंट assumptions, the most important assumption is that we assume perfect capital mobility. क्या अज्यूम करते हैं हम? परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। एंड वी ऑल रिमेंबर द कंडीशंस फॉर परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी की। परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी के लिए क्या कंडीशंस होती हैं, राइट?
सो ये तीन assumptions के साथ मेरा assumption है फोर्थ कि देयर विल बी परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी ऑल्सो. सो टेल मी समथिंग, व्हाट विल हैपन अगर हमारा इंटरेस्ट रेट जो हो, इंडिया का जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज ग्रेटर देन वर्ल्ड्स इंटरेस्ट रेट, ठीक है, और आई कैन राइट इट एज आई इज ग्रेटर देन आई एफ. व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस सिनेरियो? अगर इंडिया का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो यहाँ पे कैपिटल इनफ्लो होगा. इस सिनेरियो में हमारे पास क्या होगा? कैपिटल इनफ्लो. और हम इसका ऑल्टरनेट कंडीशन भी इजीली जज कर सकते हैं, राइट, कि अगर फॉरेन इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा इंडिया के इंटरेस्ट रेट से तो क्या होने वाला है? कैपिटल आउटफ्लो. ठीक है. एंड क्योंकि हमने परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी में ये चीज़ देखी थी कि अनलिमिटेड अमाउंट्स में होता है. जब अगर मैं मनी इन्वेस्ट भी करना चाहती हूँ मैं अनलिमिटेड अमाउंट में कर सकती हूँ. तो जो कैपिटल इनफ्लो या कैपिटल आउटफ्लो हम देखते हैं ना, ये भी अनलिमिटेड अमाउंट्स में होता है. ठीक है. तो अगर लेट्स से कि एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट लेट्स से 6% है और इंडिया का इंटरेस्ट रेट लेट्स से 8% है, तो हमें पता है कि जो जितने भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं दे आर गोइंग टू पोर मनी इनटू इंडिया, है ना. ये चीज़ हमें अच्छे से क्लियर है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स इंडिया में पैसा डालने वाले हैं. एंड अगर बहुत सारा पैसा इंडिया में आएगा तो वो कैपिटल इनफ्लो होगा. एंड सेम वी नो दैट कि अगर इंडिया में इंटरेस्ट रेट 4% हो जाए और वर्ल्ड में 6% इंटरेस्ट रेट है तो मनी विल लीव इंडिया और ये कैपिटल आउटफ्लो होगा. तो वी आर वेरी क्लियर विद दिस. और हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट से भी इसको लिंक करके देखा है. बीओपी में हमने एक चीज़ और पढ़ी है इन प्रीवियस लेक्चर्स कि बीओपी के अंदर दो कंपोनेंट आते हैं, है ना. बीओपी इज इक्वल टू टू कंपोनेंट्स. पहला कंपोनेंट मेरे पास क्या था जब ने पढ़ा था? पहला कंपोनेंट है ट्रेड बैलेंस का. एंड ट्रेड बैलेंस को वी हैव डिनोटेड बाय एनएक्स. ठीक है. अगर इस टॉपिक में कोई भी डाउट है प्लीज रेफर टू द प्रीवियस लेक्चर, वहाँ से क्लियर हो जाएगा. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में फर्स्ट कंपोनेंट इज ऑफ ट्रेड बैलेंस एंड सेकंड कंपोनेंट हमने देखा था वो था कैपिटल फ्लोज का, है ना, कैपिटल फ्लोज का. इसको हम सी एफ से डिनोट कर सकते हैं. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो कंपोनेंट होते हैं. फर्स्ट कंपोनेंट ट्रेड बैलेंस का होता है और सेकंड कंपोनेंट कैपिटल फ्लोज का होता है. नाउ ट्रेड बैलेंस वी नो क्या होता है. ट्रेड बैलेंस इज एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, है ना. और कैपिटल फ्लोज का मतलब है आइदर मनी विल कम इन और मनी विल गो आउट ड्यू टू द डिफरेंसेस इन द इंटरेस्ट रेट. ठीक है. तो ये मेरे बीओपी के दो कंपोनेंट्स हैं जिनको हम एडअप करते हैं तो मुझे बीओपी मिलता है. ठीक है. कैन यू लाइक डू अ स्मॉल न्यूमेरिकल विद मी? डू इट. ओके, ट्राई योर सेल्फ. तो लेट अस से कि एक्सपोर्ट्स जो है मेरे एक्सपोर्ट्स हैं ₹500. ठीक है. एंड मेरे इम्पोर्ट्स हैं ₹700. ठीक है. ये मेरा एक्स मेरा एक्सपोर्ट है, एम मेरा इम्पोर्ट है. ठीक है. तो तुम मुझे नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू बताओ फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है. नेट एक्सपोर्ट क्या होगा? देन टेल मी कि लेट्स से कि इंटरेस्ट रेट हाई है इंडिया में और कैपिटल इनफ्लो हुआ है. ठीक है. कैपिटल इनफ्लो हुआ है ऑफ लेट्स से ₹200. तो ये 200 जो रुपीज़ है ये कैपिटल इनफ्लो तो इंडिया के अकाउंट में ऐड होगा, राइट. तो कैपिटल इनफ्लो को या कैपिटल फ्लोज को सी एफ को मैं डिनोट कर सकती हूँ प्लस ₹200 से, राइट. तो ये जो है ये कैपिटल इनफ्लो है. तो अब तुम मुझे बैलेंस ऑफ पेमेंट बताओगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या आ रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्या वैल्यू आ रही है ये बताओगे मुझे. ठीक है. कमेंट करो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्या वैल्यू आ रही है. ठीक है. ओके. सो वन थिंग, जब तुम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे यू विल ऑल्सो रियलाइज दिस वन थिंग दैट इफ लेट्स से कि इनकम किसी कंट्री में इंक्रीज होती है, लोगों की इनकम इंक्रीजेज. ठीक है. तो इनकम क्या हो रहा है? इनकम इंक्रीजेज इन वन कंट्री. तो जब इनकम इंक्रीज हो रही है, लेट्स से इंडिया में इनकम इंक्रीज हो रही है, हमने पहले भी ये डिस्कस किया है कि जब इनकम इंक्रीज होती है लोगों की तो लोग ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं. ठीक है. क्योंकि मेरे पास ज़्यादा इनकम है तो पीपल स्टार्ट इम्पोर्टिंग मोर, राइट. एंड दिस इवेंचुअली वर्सन्स आर बैलेंस ऑफ पेमेंट, वी नो दैट. तो लोग ज़्यादा इंपोर्ट करने लगते हैं. तो हमें पता है कि ट्रेड बैलेंस जो है एनएक्स वो तो डिक्रीज होगा क्योंकि ट्रेड बैलेंस क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट. तो अगर इम्पोर्ट ज़्यादा होगा तो हमारे ट्रेड बैलेंस इज गोइंग टू बिकम नेगेटिव. ठीक है. बट इवन अ टाइनी इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, अगर इसी सिनेरियो में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है इवन फॉर अ टाइनी बिट, तो इसकी वजह से ना बहुत सारा कैपिटल जो है वो इंडिया में आने लगेगा. ठीक है. बहुत ज़्यादा कैपिटल इनफ्लो होने लगेगा. तो जब मेरा ट्रेड बैलेंस वर्सन भी हुआ, मैंने देखा मेरा ट्रेड बैलेंस वर्सन भी हो रहा है क्योंकि लोगों की इनकम इंक्रीज हो रही है. बट अगर उसी टाइम इंडिया में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाए तो इतना सारा कैपिटल फ्लो होगा, सी एफ इतना इंक्रीज हो जाएगा, कैपिटल फ्लो इतना ज़्यादा होगा कि ये डिक्रीज इन ट्रेड बैलेंस को मेरा कैपिटल फ्लो है जो है ना वो बैलेंस कर देगा. ठीक है. तो मेरा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट है वो हमेशा, मेरा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट है दिस रिमेन्स बैलेंस्ड. क्यों बैलेंस्ड रहता है? क्योंकि अगर मेरा एक कंपोनेंट ऑफ
क्या कंपोनेंट्स पढ़े थे हमने, एन एक्स प्लस सी एफ, राइट। तो अगर मेरा एक कंपोनेंट भी डेफिसिट में है तो दूसरा कंपोनेंट सरप्लस में चला जाएगा, एंड मेरा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है दिस विल रिमेन बैलेंस्ड। ये एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है टू अंडरस्टैंड दिस मॉडल एंड टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कैपिटल मोबिलिटी। ठीक है, तो यहीं से पता चलता है कि कैपिटल मोबिलिटी हमारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मेरा एक अकाउंट इन एनी केस, अगर मेरा नेट एक्सपोर्ट डेफिसिट में, तो मेरा कैपिटल नेट एक्सपोर्ट अगर मेरा सरप्लस में है, अभी डेफिसिट में ले लेते हैं, नेट एक्सपोर्ट अगर मेरा डेफिसिट में है तो मेरा जो कैपिटल फ्लो है वो सरप्लस में होकर मेरे बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंट को बैलेंस कर देता है। ठीक है, नाउ वी ऑल्सो कम अक्रॉस समथिंग विच इज इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल बैलेंस। ठीक है, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल बैलेंस, अब ये क्या होता है? ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास ना दो गोल्स होते हैं। पहला गोल होता है गवर्नमेंट का कि वो इंटरनल बैलेंस लेके आए। इंटरनल बैलेंस में क्या चीज़ें आएंगी? कंट्री के इंटरनल की बात करें तो इंटरनल बैलेंस एज इनकी फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। ठीक है, ये बैलेंस सिचुएशन हो सकता है, फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, मतलब देयर शुड बी नो अनएम्प्लॉयमेंट। फिर हो सकता है कि स्टेबल आउटपुट हो, है ना, वी वुड नीड स्टेबल आउटपुट ऑल्सो। सो हमें क्या क्या चीज़ें मिली? हमें मिला सबसे पहले कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होना चाहिए और स्टेबल आउटपुट होना चाहिए। अब अगर हम एक्सटर्नल बैलेंस पे आ जाए कि फिर यार एक्सटर्नल बैलेंस क्या होता है, तो एक्सटर्नल बैलेंस का मतलब है कि गवर्नमेंट का ये गोल होना चाहिए कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है दिस शुड ऑलवेज बी बैलेंस्ड। ठीक है, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट शुड ऑलवेज बी बैलेंस्ड। बट द प्रॉब्लम दैट कंट्रीज face in the real world is now that sometimes achieving one of these, like if I'm aiming to achieve internal balance, मेरा एक्सटर्नल बैलेंस खराब हो सकता है। इफ आई एम एमिंग टू अचीव एक्सटर्नल बैलेंस, हो सकता है मेरा इंटरनल बैलेंस खराब हो जाए। सो समटाइम्स अचीविंग वन कैन डिस्ट्रॉय द अदर, बट मोस्टली व्हाट कंट्रीज ट्राई इज कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट शुड बी बैलेंस्ड, राइट। अब बीपी कर्व देख लेते हैं यार कि बीपी कर्व दिखता कैसे है। ठीक है, तो आई वॉन्ट टू लुक एट माई बीपी कर्व, बैलेंस ऑफ पेमेंट कर्व। तो बीपी कर्व ना यार, जो मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट का शेड्यूल होता है ना वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, हमारे पास बीपी कर्व जो है वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, अब एक्स एक्सिस पे क्या है और वाई एक्सिस पे क्या है? मेरे पास एक्स एक्सिस पे क्या होगा और वाई एक्सिस पे क्या होगा। एंड बीपी कर्व दिस हम तब चेक कर रहे हैं जब मेरे पास पीसीएम की कंडीशन है, परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी की कंडीशन में ये बैलेंस ऑफ पेमेंट कर्व हम देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास इंटरेस्ट रेट है, आर से डिनोट कर रहे हैं हम इसको, दिस इज माई इंटरेस्ट रेट। और यहाँ पे वाई एक्सिस पे मेरे पास इंटरेस्ट रेट है और एक्स एक्सिस पे मेरे पास आउटपुट या इनकम है। ठीक है, और ये है मेरा बीपी कर्व। ये जो कर्व है, ये जो हॉरिजॉन्टल मेरे पास लाइन है, ये मेरा बीपी कर्व है। और यहाँ पे इस पॉइंट पे जहाँ पे मेरा बीपी कर्व है, यहाँ पे मेरे पास आर स्टार इंटरेस्ट रेट है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि इसका क्या मतलब है एग्जैक्टली exactly, और इक्विलिब्रियम वगैरह कैसे अचीव होता है। बट हमें ये याद रखना है कि जब परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी होती है, जब परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी होती है तो जो मेरा बीपी कर्व होता है, ये लिख लो, जब परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी मोबिलिटी होती है तो जो मेरा बीपी कर्व होता है दिस बिकम्स हॉरिजॉन्टल। मेरा बीपी कर्व कैसा हो जाता है? मेरा बीपी कर्व हो जाता है पीसीएम की कंडीशन में, परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी की कंडीशन में मेरा बीपी कर्व कैसा हो जाता है? माय बीपी कर्व बिकम्स हॉरिजॉन्टल। अब ये क्यों होता है? ठीक है, किस सिनेरियो में होता है अब हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट जो मेरा आई से डिनोट किया था, जब ये इक्वल हो जाता है मेरे वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट के, क्या बोला मैंने? जब मेरा डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू वर्ल्ड रेट, अभी वर्ल्ड रेट लिख देती हूँ। ठीक है, सो डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट जब वर्ल्ड रेट के इक्वल हो जाता है, उसी सिनेरियो में, सिर्फ उसी सिनेरियो में मेरे पास जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबल हो सकता है। क्यों? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि यार अगर हमने पहले डिस्कस किया है, अगर मेरा डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट मेरे वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा होगा तो मेरे पास बीओपी में सरप्लस आता है, हमने देखा है ना, तो बीओपी में सरप्लस है। और जब मेरा डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट से कम होगा तो मेरे बीओपी में डेफिसिट आता है। ये दोनों चीज़ें हमने देखी हैं। तो कब मेरा बीओपी स्टेबल होने वाला है? इस केस में से स्टेबल होने वाला है बस जब मेरा आई इज इक्वल टू आई एफ, मतलब जब मेरा डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट मेरे वर्ल्ड रेट के इक्वल होगा, बस उसी सिनेरियो में मेरा बीओपी जो है वो स्टेबल होगा। जब आई विल बी इक्वल टू आई एफ, यहाँ पे मेरे पास स्टेबल कंडीशन आ जाएगी। अब एक बात बताओ कि यहाँ पे मैंने आर स्टार क्यों मार्क किया? अगर ये मेरा बेटा देखो, अगर ये मेरा डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट है ना, यहाँ पे इसको मैं
डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट ले लेती हूँ कि मैंने वाई एक्सिस पे ना डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट लिया था। तो डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट और ये आर स्टार जो है मेरे पास, ये फॉरेन इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। तो जब मेरा डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट फॉरेन इंटरेस्ट रेट के इक्वल है, मतलब जब मेरा आर मेरे आर स्टार के इक्वल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मेरा आर मेरे आर स्टार के इक्वल है, या जब मेरा आई मेरे आई एफ के इक्वल है, उस टाइम मेरा बीपी कर्व जो है वो हॉरिजॉन्टल है। बीपी कर्व क्या है? हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। एक बात बताओ मुझे, ये जो एरिया है, देखो ये जो एरिया है, इस एरिया के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? इस एरिया में क्या मैं बोल सकती हूँ कि जो मेरा आर है, मेरा जो डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट है, इस वाले एरिया में, ये इस एरिया में मेरा जो डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट है वो मेरे वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा या कम है? मेरा वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट यहाँ पर है, मेरा वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट यहाँ पर है, इस पूरे एरिया में मेरा डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है ना मेरे वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट से। यहाँ पे देखो, ये पूरे पार्ट में मेरा आर ज़्यादा है ना मेरे आर स्टार से, तो मेरे पास यहाँ पे सरप्लस होगा ना, है ना, मेरे पास सरप्लस होगा। यहाँ पे ये ज़ीरो है, बट यहाँ पे मेरे पास सरप्लस होगा ना बैलेंस ऑफ पेमेंट में। और सिमिलरली इस एरिया के लिए बताओ मुझे, ये वाले पूरे पार्ट में जो मेरा वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा है ना मेरे डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट से, है ना। यहाँ पे मेरे पास आर स्टार ज़्यादा है ना आर से, तो इस सिनारियो में इस एरिया में मेरे पास क्या होगा? इस एरिया में मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में होगा। तो क्लियर हो गया? डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस पे हमने देख लिया है कि कैसे होता है, ठीक है। ये जो ग्राफ है ना हमारे पास, ये ग्राफ हमें समझने में अंडरस्टैंड करेगी इंटरनल और एक्सटर्नल बैलेंस के बारे में, क्योंकि देखो ये ग्राफ हमें बताता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल बैलेंस अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। सो अभी हम परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी के साथ साथ क्या अजम्पशन ले रहे हैं कि मेरा जो एक्सचेंज रेट है वो फिक्स्ड है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ठीक है। सो अभी हमारे पास जो अजम्पशन है, वी आर स्टडिंग इट अंडर पीसीएम, परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। तो हम देखते हैं कि इसमें हमें बताने की कोशिश क्या की गई है। फर्स्ट केस देखो, ठीक है, आई विल टेक इट अप योर केस वन, ठीक है। क्या है मेरे पास फर्स्ट केस इज ऑफ E1 कंसिडर करना है हमें, ठीक है। E1 यहाँ पे, मैं यहाँ पर हूँ E1। अब यार एक बात बताओ, इसमें क्या हो रहा है, क्या लिखा हुआ है मेरे पास यहाँ पे कि मेरे पास डेफिसिट अनएम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ है। दो अलग अलग चीज़ें हैं मेरे पास, इसका मतलब है मेरे पास डेफिसिट प्लस अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। डेफिसिट प्लस अनएम्प्लॉयमेंट, अब कैसे है ये? तो सपोज करो कि आउटपुट अगर लो है, आउटपुट लो है कंट्री में, ठीक है। आउटपुट लो होने की वजह से क्या होगा? आउटपुट लो है इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट होगी, क्योंकि आउटपुट लो है, सो प्रोडक्शन मतलब नहीं हो रहा, प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो फर्म्स आर नॉट हायरिंग, तो अभी अनएम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो, ठीक है। एंड अगर इंटरेस्ट रेट लो है, ये फर्स्ट केस था, और अगर बताओ कि अगर इंटरेस्ट रेट लो होगा, इंटरेस्ट रेट अगर मेरे पास लो है, तो मेरे पास कैपिटल आउटफ्लो होगा क्या? है ना, मेरे पास कैपिटल आउटफ्लो होगा, ठीक है, कैपिटल आउटफ्लो होगा, ये भी बिल्कुल आपकी बात सही है। तो क्या मैं ऐसा देख सकती हूँ कि मेरे पास अनएम्प्लॉयमेंट भी है, तो इसका मतलब मेरा इकोनॉमी इज़ वीक इंटरनली, इंटरनली तो मेरी इकोनॉमी वीक है। और क्या मैं इससे ये भी देख सकती हूँ कि मेरे पास कैपिटल आउटफ्लो भी है, मतलब मैं मनी भी लूज़ कर रही हूँ एक्सटर्नली, क्योंकि मेरा पैसा बाहर चला जा रहा है। तो इस केस में गवर्नमेंट क्या करेगी? जब मेरे पास ये दो केसेस हैं कि मेरा अनएम्प्लॉयमेंट भी है और मेरे पास कैपिटल आउटफ्लो भी हो रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? तो गवर्नमेंट के पास एक आ जाता है पॉलिसी डिलेमा, गवर्नमेंट इज इन अ डिलेमा कि क्या करना चाहिए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज पॉलिसी डिलेमा, पॉलिसी डिलेमा। अब क्या डिलेमा है गवर्नमेंट के पास? गवर्नमेंट सोच रही है कि यार एक चीज़ बताओ कि लेट्स से कि गवर्नमेंट ना ये डिसाइड करती है कि मैं मनी सप्लाई इंक्रीज़ कर देती हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि एक काम करते हैं, मनी सप्लाई इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। मनी सप्लाई इंक्रीज़ करने का अगर गवर्नमेंट सोचेगी तो इससे क्या होगा? खुद सोच के बताओ, मनी सप्लाई इंक्रीज़ होने का क्या मतलब है? मनी सप्लाई इंक्रीज़ होने का मतलब है कि इससे आउटपुट इंक्रीज़ होगा। मनी सप्लाई इंक्रीज़ करने का मतलब है आउटपुट इंक्रीज़ होगा, ठीक है। क्यों इंक्रीज़ होगा आउटपुट, कैसे आपने बोल दिया ये? तो यार जब मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाता है, तो हमने क्या देखा था थोड़ी देर पहले कि इंटरेस्ट रेट पर कैसे इफेक्ट पड़ता है इसका? इंटरेस्ट रेट तो लो हो जाता है क्योंकि मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है। अगर इंटरेस्ट रेट लो है तो फर्म ज़्यादा लोन ले पाएंगी, लोग ज़्यादा लोन ले पाएंगे, लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो जब लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे तो आउटपुट बढ़ेगा ना। तो ये पहला स्टेप गवर्नमेंट सोचती है कि यार ओके वी कैन मे बी वर्क इन दिस डायरेक्शन, एक काम करते हैं कि हम मनी सप्लाई इंक्रीज कर देते हैं, इसकी वजह से हमारा आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। बट व्हाट इज द कैच हियर? इंटरेस्ट रेट डिक्रीज्ड, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज्ड। जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होता है तो क्या होता है मेरे पास? हम देखते हैं कैपिटल आउटफ्लो। बट क्या ऑलरेडी कैपिटल आउटफ्लो नहीं हो रहा था? यहाँ पे हो ही रहा था ना। तो
और भी कैपिटल आउटफ्लो होने लगेगा। अगर मैं इस सिचुएशन में एक प्रॉब्लम सॉल्व करने गई, आउटपुट लो था, तो मैंने बोला चलो भाई ठीक है, मनी सप्लाई इंक्रीज कर देते हैं, आउटपुट बढ़ जाएगा। बट उसके वजह से क्या हुआ कि कैपिटल आउटफ्लो और होने लगा, जो कि पहले ही हो रहा था। तो सोने पे सुहागा हो गया। एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की वजह से दूसरा प्रॉब्लम और खराब कर दिया हमने। ठीक है, तो ये है एक कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसी। दिस इज अ कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसी, क्योंकि एक चीज को सुधारने के चक्कर में दूसरी चीज हमने खराब कर दी। ठीक है, एक एग्जाम्पल समझा देती हूँ क्विकली, कि ये मान लो कि इंडिया में इंटरेस्ट रेट 6% है और वर्ल्ड में भी इंटरेस्ट रेट अभी 6% है, और मेरा इनिशियली ना बैलेंस ऑफ पेमेंट जो था वो बैलेंस था। ठीक है, क्यों बैलेंस्ड है वो तो पता ही चल गया, कि मैंने बताया 6% इंडिया में भी है और वर्ल्ड में भी इंटरेस्ट रेट है। अब एक्सपेंशनरी पॉलिसी लेके आ गई मैं कैसी पॉलिसी लेके आई? एक्सपेंशनरी पॉलिसी। अब एक्सपेंशनरी पॉलिसी का यही मतलब होता है ना कि मैं मनी सप्लाई बढ़ाऊँ। पढ़ा है ना एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी क्या होता है। तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी में लेके आई, मतलब मुझे मनी सप्लाई बढ़ानी थी। एक्सपेंशनरी पॉलिसी की वजह से क्या हुआ कि मेरा इंटरेस्ट रेट फॉल हो गया, 4% पे हो गया मान लो। तो इसकी वजह से ना मेरा कैपिटल आउटफ्लो हुआ। और कितना कैपिटल आउटफ्लो हुआ? कैपिटल आउटफ्लो हुआ मेरा लेट्स से -500। इतना मेरा कैपिटल आउटफ्लो हो गया। तो पहले मेरा बीपी जो था बैलेंस था, अब मैंने देखा कि कैपिटल आउटफ्लो हुआ है -500 का। जीरो से हम जीरो से कहाँ गए हैं? -500 पे। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट अब नेगेटिव हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा ना मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। और नेगेटिव होने का मतलब कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट मेरा डेफिसिट में है। ठीक है, डेफिसिट में है, जो कि ऑलरेडी डेफिसिट में था। तो आउटपुट तो इम्प्रूव हुआ है, बट एक्सटर्नल पोजीशन मेरी और ख़राब हो गई है। ठीक है, तो हमने ये फर्स्ट केस E1 देखा था। और हमने पहला पॉलिसी डिलेमा में हमारा पहला केस था, इसको मैं केस 1 लिख देती हूँ, सॉरी सोल्यूशन 1। ये हमारा पहला सोल्यूशन था। इस सोल्यूशन पे हम आए कि यार एक काम करते हैं कि हम मनी सप्लाई जो है इंक्रीज कर देते हैं, बट हमने देख लिया कि ये गलत सोल्यूशन है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि यार अगर ये नहीं कर सकते तो क्या करेंगे? तो ये जो था ना, ये मेरा था कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी बस, सॉरी एक्सपेंशनरी पॉलिसी बस। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है? हमने मॉनेटरी एक्सपेंशन किया है। इस सोल्यूशन में हमने क्या किया था? हमने मॉनेटरी एक्सपेंशन किया था इस सोल्यूशन में। बट मॉनेटरी एक्सपेंशन इज क्लियरली नॉट वर्कड आउट फॉर अस, क्योंकि मॉनेटरी एक्सपेंशन से आउटपुट तो इम्प्रूव हुआ है, बट हमारा एक्सटर्नल पोजीशन बहुत ज़्यादा वर्सन हो गया। ठीक है, तो अब हम सेकेंड सोल्यूशन पे आते हैं। सेकेंड सोल्यूशन सेकेंड सोल्यूशन ये हो सकता है कि हम ये दोनों पॉलिसीज साथ में यूज़ करेंगे। क्या करेंगे हम? वी यूज़ बोथ पॉलिसीज टुगेदर। दो पॉलिसीज को हम साथ में यूज़ करेंगे। कैसे? मैम एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं फिजिकल एक्सपेंशन करूँगी। ठीक है, गवर्नमेंट हूँ मैं, तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि फिजिकल एक्सपेंशन करेंगे। फिजिकल एक्सपेंशन करने से क्या होगा? फिजिकल एक्सपेंशन का मतलब पता है ना? ठीक है, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होती है फिजिकल एक्सपेंशन में। और जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होगी मतलब हमारा जीडीपी इंक्रीज होगा। जीडीपी इंक्रीज होगा मतलब हमारा इवेंचुअली आउटपुट इंक्रीज हुआ। ठीक है, फिजिकल एक्सपेंशन से गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाने से मेरा आउटपुट इवेंचुअली इंक्रीज हुआ। ठीक है, और सेकंड मैं करूँगी कि एक तो मैंने फिजिकल एक्सपेंशन किया, और सेकंड पॉलिसी जो मैं यूज़ करूँगी वो मैं करूँगी मॉनेटरी टाइटनिंग का। ठीक है, अब मॉनेटरी टाइटनिंग का क्या मतलब है? मॉनेटरी टाइटनिंग का मतलब है दैट आई विल कीप इंटरेस्ट रेट वेरी वेरी हाई। इंटरेस्ट रेट को मैं हाई रखूँगी। टाइटनिंग वर्ड से प्लीज़ ये मत कंफ्यूज होना कि इसमें तो कुछ कम कर रहे होंगे, नहीं। मनी सप्लाई की बात नहीं कर रहे, वे टॉकिंग अबाउट मॉनेटरी टाइटनिंग। तो फर्स्ट हमने क्या किया? फिजिकल एक्सपेंशन किया। और सेकंड पॉलिसी हमने क्या यूज़ की है? मॉनेटरी टाइटनिंग यूज़ की है। क्योंकि हम ऑलरेडी देख पा रहे थे कि पहले हमसे यही गलती हुई थी ना, कि हमारा आउटपुट तो देखो, हमारा आउटपुट तो यहाँ पे भी इंक्रीज हुआ था, बट आउटपुट इंक्रीज होने की वजह से मेरा कैपिटल आउटफ्लो होने लगा था। तो इस चीज़ को हमने इंश्योर किया है यहाँ पे कि हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो बढ़ाएंगे, फिजिकल एक्सपेंशन करेंगे और हमारा आउटपुट भी इंक्रीज होगा, बट हम मॉनेटरी टाइटनिंग भी फॉलो करेंगे ताकि हमारा इंटरेस्ट रेट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहे। तो इसकी वजह से मैं दो चीज़ें देख पाऊंगी। जैसा कि हम सबको पता ही है, क्या देख पाएंगे हम? कि आउटपुट बढ़ जाएगा, और मॉनेटरी टाइटनिंग की वजह से इंटरेस्ट रेट क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा हाई है, तो इस बार कैपिटल आउटफ्लो की जगह हम क्या देख पाएंगे? कैपिटल इनफ्लो देख पाएंगे, क्योंकि अब हमारे कंट्री में पैसा बाहर से आएगा। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा अब इंटरनल और एक्सटर्नल बैलेंस दोनों अचीव हो गया है? हो गया ना? तो मैं कह सकती हूँ कि मेरा इंटरनल प्लस एक्सटर्नल बैलेंस इस सिनारियो में दोनों चीज़ें मेरे पास अचीव हो गई हैं। तो हमने क्या सोल्यूशन निकाला? कि हम जब ISLM कर्व पढ़ते हैं, हम ISLM कर्व पढ़ते हैं, यहाँ पे मेरे पास इंटरेस्ट रेट होता है, यहाँ पे मेरे पास आउटपुट होता है। IS कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है इन इंटरेस्ट रेट एंड आउटपुट शेड्यूल, एंड LM कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है, राइट? तो each point in the economy is actually a combination of your IS curve and LM curve. IS curve मेरा गुड्स मार्केट डिनोट करता
है ना, और LM कर्व मेरा मनी मार्केट डिनोट करता है। तो अभी जो मैंने डिसीजन लिया था, मैंने क्या डिसीजन लिया था कि फिजिकल एक्सपेंशन करेंगे, राइट। फिजिकल एक्सपेंशन करेंगे, हमने ये डिसीजन लिया था। तो एक बात बताओ, जब हम फिजिकल एक्सपेंशन कर रहे हैं, इसका मतलब IS कर्व विल मूव टू द राइट, ठीक है। IS कर्व, IS से IS डैश पहुंच जाएगा, इट विल मूव टू द राइट। एंड हमने क्या बोला है कि हम इंटरेस्ट रेट को वेरी वेरी हाई रखेंगे। जब देखो यहाँ पे पहले मेरा इनिशियली ये इंटरेस्ट रेट था एंड ये आउटपुट था। जब मैंने फिजिकल एक्सपेंशन किया तो मेरा इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, ठीक है। तो अब हम इसको यहीं पे रोक के रखेंगे, यही है मेरी पॉलिसी कि अब इसको ना हम यहाँ पे आई डैश पे रोक के रखेंगे, इंटरेस्ट रेट को बहुत ज़्यादा हाई रोक के रखेंगे। तो हमें दोनों ही कर्व्स को ना बहुत स्ट्रेटेजिकली शिफ्ट करना होता है। ये है पूरा लॉजिक कि अगर मेरे पास ये देखो, ये मेरे पास 4 डिफरेंट केसेस होंगे ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल बैलेंस, तो मैं उसको कैसे अचीव करूंगी। फर्स्ट केस हमने देख लिया। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि आई देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जो आई है ये डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट है एज मेंशन्ड हियर, और वाई जो है मेरे पास, दिस इज डोमेस्टिक इनकम या आउटपुट। तो ये वाई स्टार एंड आई एफ, ये आई एफ का क्या मतलब है यहाँ पे कि यहाँ पे इस पॉइंट पे आई इज इक्वल टू आई एफ, ठीक है। मतलब डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट और वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट इस पॉइंट पे बिल्कुल बराबर है। और यहीं पे इसीलिए हम देख पा रहे हैं कि मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट मेरा जीरो है, ठीक है। ओके मैम, समझ आ गया ये भी। अब हमने इस पूरे ग्राफ को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये वाला पार्ट हम समझ चुके हैं, ये इवन कि ये मेरे पास क्यों आया। और एक चीज़ और कि ग्राफिकली भी मैम समझा दो कि इस पार्ट में मेरा डेफिसिट और अनएम्प्लॉयमेंट क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने तो सिर्फ सोल्यूशन बताया है, ठीक है। ये भी देख लेते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे समझने की कोशिश करना ध्यान से, ठीक है। देखो यहाँ पे ये जो मेरा इक्विलिब्रियम आउटपुट इस वाले पूरे पार्ट में ना, देखो मेरा इस पूरे पार्ट में आउटपुट लो है ना, इसीलिए मेरे पास डेफिसिट आया था। और एक चीज़ कि ये वाले पूरे पार्ट में मेरा जो डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट है वो वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट से कम है, इसीलिए मेरा क्या हुआ था, कैपिटल आउटफ्लो हुआ था, ठीक है। ये समझ आ गया। अब सेम इसको कंसिडर करना, E2 को कंसिडर करो, E2 को कंसिडर करो। अब देखो यहाँ पे इस वाले पूरे पोर्शन में मेरा जो आउटपुट है वो ज़्यादा है ना, ये मेरे इस आउटपुट से वाई स्टार से ये वाला आउटपुट ज़्यादा है, आउटपुट ज़्यादा है मेरी कंट्री में। एंड आउटपुट ज़्यादा होने की वजह से मेरा ओवर एम्प्लॉयमेंट तो है क्योंकि मेरा आउटपुट बहुत ज़्यादा है, बट अभी भी मैं डेफिसिट में क्यों हूँ, क्योंकि इस वाले पूरे पार्ट में भी जो मेरा डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट है वो मेरे वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट से कम है, इसीलिए मैं अभी भी डेफिसिट में हूँ। ठीक है मैम, समझ आ गया। ऊपर वाले दो भी समझा दो। तो यहाँ पे E3 पे आ जाओ। E3 पे देखो यार, E3 पे क्या हो रहा है, E3 पे भी ओवर एम्प्लॉयमेंट है। ओवर एम्प्लॉयमेंट क्यों है, आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे भी इस वाले पूरे पार्ट में भी मेरा आउटपुट तो ज़्यादा है, तो इसीलिए ओवर एम्प्लॉयमेंट है। बट इस वाले पूरे पार्ट में जो मेरा आई है वो मेरे IF से ज़्यादा है ना, इसीलिए यहाँ पे मेरे पास सरप्लस है। सरप्लस किस चीज़ का है, मेरे पास कैपिटल इनफ्लो है, इसीलिए मेरे पास BOP सरप्लस है ना। और मैम इसी तरह से E4 भी बता दो, तो E4 में भी मेरे पास क्या हो रहा है कि ये वाले पूरे पार्ट में मेरे पास अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि यार यहाँ पे मेरा पूरा आउटपुट कम है, पर यहाँ पे मेरे पास सरप्लस है क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट रेट है वो वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट से, मेरा इंटरेस्ट रेट जो है वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए मेरे पास यहाँ पे सरप्लस है। तो हम ये पूरा कॉन्सेप्ट अब बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं, है ना। इसको हम एक फाइनल लिंक करें अब। तो हमने ये सोल्यूशन समझ लिया। और तुम एक और चीज़ कर सकते हो बहुत इंटरेस्टिंग, इफ़ यू हैव द टाइम एंड इफ़ यू वांट टू, इफ़ यू विश टू, अपनी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करने के लिए हमने बस अभी E1 को कंसिडर किया था और उसके लिए एक सोल्यूशन बनाया, ठीक है, कि हमें क्या करना पड़ेगा। और हमारा इक्विलिब्रियम सोल्यूशन ये आया था कि हमें दोनों पॉलिसीज़ को साथ में यूज़ करना पड़ेगा। ऐसे ही तुम कर सकते हो फॉर E2, E3 एंड E4 ऑल्सो, ठीक है। टेक दीज अप इंडिविजुअली एंड डिसाइड करो दैट हाउ आर यू गोइंग टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज़ फॉर दीज, ठीक है। ओके।